हेलो फ्रेंड्स, सो एज़ वी ऑल नो हमारे जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें जो हमारा इंग्लिश वाला पोर्शन है दैट इज़ द मोस्ट स्कोरिंग पोर्शन. द मोस्ट स्कोरिंग पोर्शन इज़ योर इंग्लिश पोर्शन. और आज उसी पोर्शन में से आई हैव ब्रॉट अबाउट एन एक्सरसाइज ऑफ क्लोज टेस्ट फॉर ऑल ऑफ अस टू प्रैक्टिस. सो क्लोज टेस्ट इज़ अ टेस्ट इन विच आपको एक पैराग्राफ दिया जाता है, जैसे यू कैन लुक एट इट ऑन द स्क्रीन. यू गिवन अ पैसेज, उसमें से कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनको निकाल दिया जाता है फॉर यू टू फाइंड आउट द आंसर ऑफ दोज. एंड देन यू हैव टू फाइंड द वर्ड्स जिनको लिखने के बाद उस पैसेज की प्रॉपर सेंस बन सके, उस पैसेज का मीनिंग हम समझ सकें, राइट? सो आई वॉन्ट टू टेल यू दैट क्लोज टेस्ट इज़ वन टेस्ट इन विच यू कैन स्कोर फुल मार्क्स. पूरे 10 मार्क्स आप इसमें स्कोर कर सकते हैं. ऑल यू नीड इज़ अ लिटिल बिट ऑफ confidence and a lot of knowledge, of course, so that you are able to eliminate your options and you are able to find the correct answer. So let us look at this cloze test today and let's see how we should solve it. Now friends, when you begin to solve your cloze test, you are supposed to read the first sentence. जैसे अभी ये पहले sentence में ही आपको नज़र आ रहा है that there is a fill up, there is a question in the first line itself, right? So what you have to do is just read the line, right? पहले आप line पढ़ो सिर्फ. The dash to marriage in urban India is turning turtle. Now, so this is talking about some marriage in the urban Indian households, right? So हमारा जो आंसर है वो इसी के अनुकूल, इसी के अकॉर्डिंग होना चाहिए, right? So let's look at the options. The first option is demands. Now demands cannot be the answer. Why? Because if you put it the demands to marriage in urban India, then यहाँ पे जो is लिखा हुआ है ये गलत हो जाता है. या तो अगर यहाँ पे R लिखा होता तो I would have considered demands, but now that it is demands is cancelled, so we have eliminated one option. Let's look at the next one. The economics to marriage in urban India is turning turtle. Yes, this could be the option, तो इसको अभी हम 50-50 में रखते हैं. Let's look at the last one. The attitude to marriage in urban India is turning turtle. ये भी हो सकता है. अब जब ऐसी सिचुएशन आए जहाँ पे दो ऑप्शंस में आप फंस रहे हों तो आगे पैराग्राफ को पढ़ो. द पैराग्राफ विल आंसर यू. नाउ द नेक्स्ट लाइन सेज द फाइनेंशियल इम्पेरेटिव्स ऑफ मॉडर्न अर्बन लिविंग डिमांड दैट बोथ. अभी इससे हमें क्या आइडिया मिला दैट यहाँ पे फाइनेंसेस की बात हो रही है और फाइनेंसेस में एटीट्यूड फिट नहीं आएगा. सो आवर आंसर इज इकोनॉमिक्स, राइट? सो व्हाट आई डिड, आई जस्ट सिंपली एलिमिनेटेड द अदर ऑप्शंस सो दैट आई कैन फाइंड द करेक्ट वन. जैसे कि हम अपने GS के पेपर्स में या अदरवाइज इन अदर क्वेश्चंस ऑल्सो we use the method of elimination. In the same manner we are using the method of elimination in English as well, right? Now let's move on to the second fill up. So the financial imperatives of modern urban living demand that both dash should have a career. अभी both की बात हो रही है. both pairs should have a career. both pairs कैसे हो सकता है? शादी में एक ही पेयर होता है ना, तो this is wrong. both couples, no. couple is in fact both husband and wife together make a couple, right? So both, या तो यहाँ पे couple होता तो भी हम इसको consider करते, but it's couples, so this is also wrong. So ultimately हमारा आंसर बन जाएगा partners. तो आंसर हमारे पास elimination से आ गया. अगर आप इसको पढ़ोगे तो आपको ये सेंसिबल भी लगेगा. The financial imperatives of modern urban living demand that both partners should have a career, right? अभी हम आगे चलते हैं on a third blank. The woman's dash is that the man as the breadwinner should be. अभी ये ऑप्शंस से हम इसको समझते हैं. The woman's example is that, no, ये एक स्टेटमेंट है, ये एग्जाम्पल नहीं है, so this is cancelled. The woman's idea is that the man as the breadwinner, no, again idea भी यहाँ पे नहीं अप्लाई होगा. Why? The reason being that this is a statement. This is a statement. जो यहाँ पे लिखी गई है ये एक स्टेटमेंट है and statement is not an idea. So statement के लिए what we use stance. So your answer will be stance. The woman's stance is that, stance का मतलब समझते हैं आप? A woman's stand, a woman's voice, the opinion that she has. A stance is opinion. तो ये opinion ही है, right? So the woman's stance is that the man as the breadwinner should be dash the household expenses, while what she earns is the jam over the bread and butter. अभी इसके ऑप्शंस देखो आप. सबसे पहला है शोल्डरिंग. ये हमने बहुत बार पढ़ा है, ये ऑप्शन बन भी सकता है ना? पढ़ के देखते हैं हम.
The woman's stance is that the man as the breadwinner should be shouldering the household expenses while what she earns is jam over the bread and butter. Now देखो, कुछ बच्चों के लिए ये स्टेटमेंट बहुत ही कंफ्यूजिंग होगी बिकॉज इसमें बहुत कुछ लिखा हुआ है और हमें ये समझ में नहीं आ रहा कि हम क्या चीज़ चूज़ करें इसमें से. सो अब इसके लिए आई विल गिव यू अनदर वेरी इंपॉर्टेंट टिप ऑफ द डे, दैट इज़ यू शुड कन्वर्ट द सेंटेंस into your mother tongue or any language that you are comfortable in. मान लीजिए कोई बहुत ही कॉम्प्लेक्स सेंटेंस आ गया, somebody is there among the people who are listening जिसको इसका मतलब ही नहीं पता, what she earns is jam over the bread and butter, मतलब नहीं पता इसका, तो इसका हम क्या करेंगे, इसकी हिंदी कीजिए आप. ये कहता है कि जो वुमन है वो ये मानती है कि जो आदमी है ब्रेड विनिंग तो वो कर ही रहा है. ब्रेड विनिंग का मतलब होता है अर्निंग, बाहर जाके काम करके कमा के लेके आना, उसको बोलते हैं ब्रेड विनर. सो द मैन एज द ब्रेड विनर उसको क्या करना चाहिए कि उसको शोल्डर करने चाहिए घर के कामकाज, जबकि जो एक औरत कमा रही है वो उनके खाने पीने के खर्चे के काम आ सकता है. कहने का मतलब ये है कि अगर घर में 2 सैलरीज आ रही हैं तो एक सैलरी से दे कैन यूज़ इट फॉर द हाउस होल्ड एक्सपेंसिस एंड अनदर सैलरी कैन बी यूज्ड फॉर देयर डेली लिविंग, लाइक फॉर देयर फूड कंजम्पशन एंड अदर स्टफ. सो यहाँ पे हमारा आंसर बनेगा शोल्डरिंग. शोल्डरिंग का मतलब होता है मदद करना किसी के साथ काम आधा आधा बंटवा देना. नेक्स्ट, मृणालिनी सिंह अ मैनेजर इन अ हाई डैश कंपनी, इन अ हाई वॉट, इन अ हाई पावर्ड कंपनी, ऐसा तो हमने कभी नहीं सुना. इन अ हाई इनकम कंपनी, नो, दैट इज़ नॉट अ वर्ड. यू आर नॉट इन एनी काइंड ऑफ हाई इनकम company. We've never heard that kind of statement ever before, so this is also wrong. The answer is profile. ये आपने कई बार सुना होगा, हाई प्रोफाइल जॉब्स, है ना, आपने सुना होगा दैट ही इज़ वर्किंग इन अ वेरी हाई प्रोफाइल जॉब. तो हाई प्रोफाइल जॉब ऐसे ही हाई प्रोफाइल इन कंपनी. सो मृणालिनी सिंह अ मैनेजर इन अ हाई प्रोफाइल कंपनी सेज दैट माई हस्बैंड अर्न्स इनफ टू कीप द होम स्टोव बर्निंग. इसका आंसर मुझे कैसे मालूम पड़ा कि ये स्टोव है? देखो बेटा, अगर आप इसको हिंदी में कन्वर्ट करोगे ना तो इसका मतलब बनेगा कि मेरा हस्बैंड इतना कमा लेता है कि हमारे घर का जो चूल्हा है वो चलता रहता है. तो चूल्हे की यहाँ पे इंग्लिश क्या बनेगी? स्टोव. यहाँ पे अगेन आई अप्लाइड द सेम ट्रिक. यू कैन कन्वर्ट इट इनटू द लैंग्वेज दैट यू आर कंफर्टेबल इन सो दैट आपको आंसर मिल जाए. नेक्स्ट, आई डेफिनेटली वॉन्ट अ डैश इन वेयर माई मनी गोज़. अभी इसके ऑप्शंस देखो आप, से, आंसर एंड स्टेटमेंट. I definitely want a statement in where my money goes. No. I definitely want a answer. तो अगर आंसर तो आ नहीं सकता बिकॉज अगर एन लिखा हुआ होता तो भी हम ले लेते. तो आंसर इज़ ऑल्सो गॉन, सो वी आर लेफ्ट विथ से. अगर आप इसको वैसे भी पढ़ो तो ये बनता है डेफिनेटली वॉन्ट अ से इन वेयर माई मनी गोज़. कहने का मतलब ये कि मुझे जानना है कि मेरा पैसा कहाँ जा रहा है, ये मुझे बताया जाए, है ना, तो उसका मतलब बनेगा से. नेक्स्ट, एज अ हाई प्रोफाइल एग्जीक्यूटिव. अभी देखो, अगर आपको ऊपर यहाँ पे नहीं आंसर मालूम पड़ रहा था हाई के साथ, तो यहाँ आपको पैराग्राफ में ही आंसर मिल रहा है, राइट. तो कई बार पैराग्राफ में ही आंसर्स होते हैं, आप अगर उसको अच्छे से एनालाइज करोगे तो आंसर आपके सामने आ ही जाएंगे. एनीवेज, लेट्स कंटिन्यू. एज अ हाई प्रोफाइल एग्जीक्यूटिव आई नीड टू कीप अप अ सर्टन डैश पर्सनली एज वेल एज ऑफ माई हस्बैंड एंड चिल्ड्रन. अभी हम इसका देखते हैं ऑप्शंस. फर्स्ट इज़ रेपुटेशन, सेकेंड इज़ इमेज एंड थर्ड इज़ फेस. देखो, फेस तो इसमें बैठ ही नहीं सकता ना फिट, तो एक ऑप्शन तो हम एलिमिनेट कर ही देते हैं. अभी 2 बचे हैं हमारे पास, रेपुटेशन एंड इमेज. नाउ लेट्स लुक एट दिस. दोनों को हम जो फिलअप है उसके अंदर फिट करके देखते हैं. सो एज अ हाई प्रोफाइल एग्जीक्यूटिव आई नीड टू कीप अप अ सर्टन रेपुटेशन पर्सनली एज वेल एज ऑफ माई हस्बैंड एंड चिल्ड्रन. या फिर एज अ हाई प्रोफाइल एग्जीक्यूटिव आई नीड टू कीप अप अ सर्टन इमेज personally as well as of my husband and children. अभी if you read it carefully, so the answer comes out to be image. reputation नहीं, यहाँ पे image आएगी. आप अपनी और अपने हस्बैंड और बच्चों की कुछ छवि है जो वहाँ पे लेके जा रहे हैं, तो छवि क्या है? It's an image. I also need to dash the image of my home. Look again, you have the answer in your paragraph. Also भी आया है, इसका मतलब पहले वाले सेंटेंस में इसी से रिलेटेड कोई बात हुई होगी, है ना. सो दी आंसर इमेज है, ये कंफर्म हो गया है हमें. ओके, एनीवे, कंटिन्यूइंग. आई ऑल्सो नीड टू डैश द इमेज ऑफ माई होम बिकॉज ऑफ द पीपल हु विजिट मी. वट आर दी ऑप्शंस? कीप अप,
कीप ऑन, कीप फॉर. अभी कीप फॉर जहाँ पे आ गया ये तो नहीं है. कीप ऑन, नो. आई कीप ऑन ईटिंग लेज, ये एक सेंटेंस है. इससे आप कीप ऑन का मतलब समझ सकते हैं ना कि मैं बार बार ये करती हूँ. तो इमेज के रिगार्डिंग कोई बार बार जैसी चीज़ तो है नहीं. सो आवर ऑप्शन विल बी कीप अप. दीज आर फ्रेजल वर्ब्स, ये आपको प्रैक्टिस से आएंगे. आई ऑल्सो नीड टू कीप अप द इमेज ऑफ माई होम बिकॉज ऑफ द पीपल हु विजिट मी. वेयर डैश वुड द मनी फॉर ऑल दिस कम फ्रॉम. वेयर फ्रॉम डज ऑल दिस मनी कम फ्रॉम, ये तो सेंसलेस हो गया. नो. वेयर फॉर ऑल दिस मनी कम्स फ्रॉम, नोप. सो व्हेन यू कैंसल बोथ दिस ऑप्शंस यू आर लेफ्ट विद योर आंसर, दैट इज एल्स. हिंदी क्या बनेगी इसकी, और फिर ये पैसा, ये सब करने के लिए पैसा आखिर आएगा कहाँ से, तो वो आखिर आएगा कहाँ से यहाँ का आंसर बन जाएगा एल्स. राइट. सो फ्रेंड्स, दिस इज हाउ यू सॉल्व योर क्लोज टेस्ट. अगेन आई विल रिपीट द टिप्स. फर्स्ट इज यू शुड रीड द होल सेंटेंस. यू विल फाइंड, आपको उसका मीनिंग समझ में आएगा सेंटेंस का. इट विल बी वेरी ईजी फॉर यू टू लोकेट द करेक्ट आंसर. If that is not working, the second tip is please convert the sentence into your mother tongue or any other language that you are comfortable in. And finally, जैसे हमने दो केसेस में देखा, sometimes your answer lies right in the paragraph. Please continue reading the paragraph. आप उस blank को छोड़ के आगे के sentences को पढ़िए. You will find something related to the previous sentence. पैराग्राफ में ऐसा ही होता है ना, जो सेकेंड सेंटेंस है वो फर्स्ट से किसी न किसी तरीके से लिंक्ड होता है. So you know, with that link you will be able to answer the questions. So I hope that all of you have been able to understand cloze test, and I hope that you will be able to perform very well in that. Thank you so much for your patience listening.